تو جو پارٹیسپینٹس تھے اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہے کتنے ہیں کتنے چلے گئے سارے چلو سب سے پہلے تو میں ممنون اور مشکور ہوں آرٹ کا کہ جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر میرے خیال میں اس 2 سال کے عرصے میں یہ کوئی تیسری نشست ہے جو مختلف تنظیموں کی جانب سے یہ ارلی چائلڈ میرج بل کے سے متعلق جو ہے منعقد کی گئی. اس سے پہلے ایک بہت بڑی کانفرنس میرے خیال میں سرینا میں ہوا تھا جس میں میرے خیال میں وہاں پر جو ہمارے وومن کمیشن جو ہے اس کے کچھ چیئرپرسن صاحبہ اور ان کے اراکین وہ آئے تھے. اس پہ تفصیلی بات ہوئی. پھر 1-2 سیشنز میرے خیال میں اسپیشل سیشنز ہم نے ان کے ساتھ بھی کیے. جب لاسٹ ٹائم ایک سیشن ہوا تھا جو پرٹیکولرلی جب وہاں پر اسلام آباد سے جو ہمارے وومن کمیشن کے ریپرزنٹیٹیوز تھے آئے تھے, دے ور ویل پریپیئرڈ. انہوں نے کافی بینر, پوسٹرز, لیفلیٹ, بروشرز یہ ساری چیزیں تیار کر کے آئے تھے. تو آئی ریئلائز دیکھیں ایک چیز ہے, میں اب اس میں نہیں جاؤں گا کس نے کیا کیا, یونیسیف کیا بول رہا ہے کیا ہے, ہمیں کرکس میں جاننا چاہیے کہ یہ کیوں ہو نہیں رہا ہے. نہیں, اٹس ناٹ انفارمیٹیو سیشن. آپ آل آف یو بلانگس ٹو سول سوسائٹی آرگنائزیشن سے تعلق ہے. اس میٹر پہ آپ کی نالج ہم سے زیادہ ہے. ہم یہاں آپ کو نالج دینے نہیں آئے بیکاز وی ڈونٹ نو. مے بی آپ اس کے ہسٹری کو جانتے ہیں, اس کے کنٹیکسٹ کو جانتے ہیں, کنٹری وائز اس کے مے بی آپ لوگ اس کے جو بلوچستان کا پاکستان کا اسٹیٹس ہے اس وقت اس کو سمجھتے ہیں. لیکن دا پرابلم از کہ وہ اس کلچرل کنٹیکسٹ کو, اس پولیٹیکل کنٹیکسٹ کو, اس ریلیجس کنٹیکسٹ کو, اس ریجنل کنٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں اگر یہ بل اتنی طویل عرصے بعد بھی منظور نہیں ہو رہا وہ کیا وجوہات ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری اوپن اینڈ سنسیئر. اگر ہم ان پہ بات کریں گے تو شاید ہم آگے ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. ہم اراکین اسمبلی جو بھی اس میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اگر سیشن فار دا سیک آف سیشن کہ جی ہم نے سیشن کر لیا ہے, وہ پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ایک چیز جو میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ پہ ابھی تک کوئی اتنا بڑا پریشر نہیں ہے. لائک دیر آر ڈفرنٹ پریشر گروپس. جب ان کے مطالبات ہوتے ہیں دے کریٹ دیٹ پریشر گروپس. کچھ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ کورٹس میں جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, بھوک ہڑتال پہ ہنگر اسٹرائکس پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کے اس بل کے حوالے سے اٹس مور لائک اے ڈرائنگ روم ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ. اٹس گوئنگ آن سنس لانگ, آئی تھنک آلموسٹ لائک 8-9-10 ایئرز. پنجاب اور سندھ میں اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا کہ وہاں پہ کلچرل کنٹیکسٹ, پولیٹیکل کنٹیکسٹ, ریجنل کنٹیکسٹ اینڈ ریلیجس کنٹیکسٹ آر ڈفرنٹ فرام بلوچستان. تو یہ چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی. ضروری نہیں کہ جو پاکستان میں ایک جگہ پہ کوئی قانون ہے وہ اسی طرح اس پہ اطلاق ہوگا. بلوچستان میں تو آئین کا اطلاق بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. جو آئین ہم نے 1973 میں منظور کیا, 2010 میں 18 امینڈمنٹ متعارف کروایا, لیکن آئین کا جو سب سے زیادہ آرٹیکلز ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, انسان کے بنیادی حقوق ہیں, یہ دراصل یہ انسانی بنیادی حقوق سے ہی نکلتا ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ ڈفرنٹ. اس میں باقاعدہ دیا ہوا ہے, آپ کے آرٹیکل 9 سے شروع ہوتا ہے بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس کا تقریباً 29 آرٹیکل تک جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کا. تو یہ اصل میں انہی میں سے ایک کیا کہتے ہیں کہ لیجسلیشن ہے جو کمٹمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کی گئی ہے, جو کمٹمنٹ پاکستان نے نیشنلی انٹرنیشنلی سیڈوں میں کی ہے, چائلڈ رائٹس کنونشن کے حوالے سے کی ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی گارنٹیز ہیں ایز اٹ از ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. فرد کی سلامتی ہے, ٹارچر ہے, ڈس اپیرنسز ہے, عورت کی جو ہے تقدس ہے, اس کی عزت ہے. میٹرنل مورٹلٹی کیا ہے؟ بی بی نے بڑی خوبصورت شعر کہا, اس نے تو کوزے میں بند کر دیا. وہ میٹرنل مورٹلٹی کا وہ آخری جو آپ کا شعر تھا اگر اب دوبارہ سنا. میرا ہونا بھی کوئی ہونا ہے, اور 16-17 سال کی عمر میں بچیوں کی شادیاں, پھر اس کے بعد جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ جتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں پریگننسی میں, اس کے باعث ڈیٹا یہاں پہ پڑا ہوا ہے کہ 1400 بچیاں یا ماہیں جو ہیں وہ بلوچستان میں, 1 لاکھ میں سے 1400. تو پہلے جو اسٹیٹسٹکس ہے بلوچستان میں 875 تھی, کوئی 900 کہتا ہے, کوئی 1000 کہتا ہے. میں تسلسل سے میرے خیال بلوچستان میں خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے میں 10 سال سے لکھ رہا ہوں. when I was with UN, ابھی بھی میں نے
कोई 3 दिन 4 दिन पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से, जो UNDP का बहुत ही वो क्या कहते हैं कि एक किस्म का प्रेस्टिजियस बहुत प्राइम रिपोर्ट होता है। मैं आई एम द पार्ट ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल। तो अभी जो हमारी मीटिंग हो रही थी, हफीज़ पाशा साहब थे, जो बलूचिस्तान का स्टेटिक्स देखा अभी आपके सामने, विद इन मे बी 2 to 3 weeks 4 weeks आ जाएगा मेरे ख्याल में। वो सिर्फ देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कब उसको लॉन्च करेंगे, तो आपको बड़ा शौक होगा। इट्स नॉट ओनली, और ये उस कंटेक्स्ट को समझना चाहिए कि मैं अभी आज ही बैठा था, मैं जब खरान में था 4-5 दिन पहले, मैंने 1-2 ट्वीट्स देखे बलूचिस्तान वुमेन फोरम। आई डोंट नो कोई है बलूचिस्तान वुमेन फोरम की, कोई बैठी है यहाँ पे हैं? बलूचिस्तान वुमेन फोरम है कोई, लेकिन आई डोंट नो। तो किसी खातून ने बहुत ही अच्छे इशूज़ हाईलाइट किए थे, उनका ट्वीट मैंने देखा, आई रिप्लाइड टू हर। और मैंने अभी बैठे बैठे, क्योंकि आज हमारी असम्बली में इजलास भी है, मैडम की भी हमारी, हम सब 2 बजे, फिर मैंने 8 को इजलास हो रहा है, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस डिबेट फॉरवर्ड, नॉट ओनली चाइल्ड राइट्स, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ इट। अगर आप इसको एक्सक्लूसिवली लेंगे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग अभी तक इसको समझते नहीं हैं। लोग इसको अपनी प्राइवेसी में इंक्रोचमेंट समझते हैं, लोग अपने फैमिली मैटर्स में मुदाखलत समझते हैं, लोग अपने ख़ानदानी मामले में इसको मुदाखलत समझते हैं, एंड दैट्स द माइंड सेट। वी नीड टू चेंज दैट माइंड सेट कि हमारा मकसद ये नहीं है कि आपके फैमिली मामलात में मुदाखलत, आपकी बच्ची का अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी करवाना, या आपकी बच्ची को जो है शादी से रोकना, या आपके घर में, क्योंकि अभी तक औरत का मुकाम बलूचिस्तान में देखें, हम सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारे PhDPs आते हैं, बजट आते हैं। सिंस लास्ट 2 years वी हैव बीन डिस्कसिंग PhDP, कोर्ट में भी गए हैं कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, महदूद वसाइल हैं, बहुत कम पैसा है और बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें हमने प्रायोरिटाइज़ करना है। हमने औरतों को के तकद्दुस को बहाल रखना है, या हम औरतों का जो तकद्दुस जिस तरह पमाल हो रहा है कि वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं चारपाइयों पे। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ये खरान है, कोई ऐसा दूसरा तीसरा दिन नहीं है जब मुझे फ़ोन आते हैं कि हमारे जो औरतें हैं वो BMC में बाहर पड़ी हुई है, कोई डॉक्टर लेने के लिए तैयार नहीं, सिविल हॉस्पिटल में है, खरान में, हमारे अपने गांव में, और सब इट्स सेम पूरे बलूचिस्तान में। जो गायनी का जो हमारा शोबा है वो बिल्कुल तबाही का शिकार है। तो इसी सी वजह से सालाना जो है, हम अंदाज़ा लगाएं कि अगर 1 लाख और ख़वातीन में 1400 ख़वातीन अमवात का शिकार होती हैं सालाना, तो आप अंदाज़ा लगाएं, मैं बलूचिस्तान की 1 करोड़ 20 लाख 22 लाख आबादी है, मैं अज्यूम करता हूँ, फ़र्ज़ करता हूँ कि बलूचिस्तान में तकरीबन कम से कम 15 लाख ख़वातीन तो होंगी। जो मैं 1 करोड़ 20 लाख में से बच्चों को निकालें, बच्चियों को निकालें, मर्दों को निकालें, नौजवानों को निकालें, बूढ़ों को निकालें, कम से कम 8 से 9 लाख या 10 लाख प्रोडक्टिव वुमेन्स तो हैं जो शादीशुदा हैं, जो हर साल जो हैं वो बच्चे ज़्यादा होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर साल में 15 लाख बच्ची औरतें जो पैदाइश के मरहले से गुज़रती हैं, 1 लाख का अगर 1400 हलाकतें होती हैं, तो ये कितना हुआ? 15 लाख में कितनी औरतें सालाना बलूचिस्तान में अमवात का शिकार होती हैं? आप लोगों किसी के पास कैलकुलेटर है? मैं वैसे ही बड़ा बदनाम हूँ, कहता है ये फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अनटिल अनलेस यू डोंट नो द फैक्ट। हाँ, 21,000 बच्चियाँ और औरतें सालाना अमवात का शिकार होती हैं जस्ट ड्यू टू मैटरनल मोर्टेलिटी। और इस दफ़ा का बजट उठा के देखें, हार्डली यू सी अ सिंगल पेनी in terms of investing or trying to address the maternal mortality in Balochistan. Zero. मैंने नहीं कहा कि आप लोग मुनज़्ज़म नहीं हैं। You have to understand, बजट करने से पहले बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड ये जो चाइल्ड मैरिज का इशू है, ये सब इसके साथ इंटर रिलेटेड है। ये जो आपने कहा कि 21,000 बच्चियाँ या औरतें अमवात का शिकार होती हैं, तो इस 21,000 में से तकरीबन 6 से 7 हज़ार बच्चियाँ वो हैं जिनकी कम उम्र में शादियाँ होती हैं। अगर मैं 50% कहूँ तो 10,000। तो आप लोगों ने अपना केस, यू हैव टू फाइट इट डिफरेंटली। आप लोगों को आगाही का जो मुहिम है, समझाने का जो मुहिम है, लोगों को बताने का मुहिम है, चीज़ों को ले जाने का जो तरीक़ाकार है। लास्ट टाइम जब मैंने देखा उनमें एक गलती थी, मुझे शायद गलती लगा, शायद उनके लिए सही हो, तो उन्होंने कोई जो स्लोगन बनाया था, आई डोंट रिमेंबर राइट, वो मैंने उनको दुरुस्त करके दिया। मैंने कहा देखें, लफ्ज़ बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, आइडियाज़ बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने इस इशू को, और ये इशू आप लोग आपस में बैठे हुए हैं, अगर कंट्रोवर्शियल नहीं है, कन्फ्यूजिंग ज़रूर है अभी तक हमारी सोसाइटी में। स्टिल देयर इज़ अ कन्फ्यूजन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप में,
हमारे यहाँ रिलीजियस ग्रुप्स में, हमारे यहाँ खैर सिविल सोसाइटी में नहीं होगा, हमारे यहाँ जो रीजन हमारा है बहुत बड़ा है बलूचिस्तान का, वी हैव डिफरेंट रीजन्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन रीजन्स में इसका कंटेक्स्ट डिफरेंट है। तो ये इतना ब्रॉड इशू है, इस पे लिखने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। सो आई हैव डिसाइडेड इंशाल्लाह हम जो है इसी इजलास के लिए ख़वातीन के जो भी मसाइल हैं जिसमें उनके माशी, माशरती, सियासी, समाजी, रोज़गार, तालीम और ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स, डिग्निटी, जिस तरह कहते हैं कि फ़र्द की सलामती या फ़र्द की ह्यूमन डिग्निटी, आई थिंक ह्यूमन डिग्निटी के साथ हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा जिसका की ज़रूरत है बलूचिस्तान में, हम वुमेन की डिग्निटी पे जो है बात करें, लोगों में आगाही दें। और वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज, जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे, बुशरा साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, अमल दरामद का इशू है। वी हैव लॉज, ये मैं आपको कानून निचोड़ के, किसी दिन मुझे टाइम मिला जूसर में डाल के उसको थोड़ा सा निचोड़ के उसका जूस निकाल के मैं ये वाला एग्जैक्टली आपको निकाल के दे दूंगा। इट्स ऑलरेडी प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स ऑलरेडी देयर। व्हेन पाकिस्तान signed this 2-3 conventions, Convention on Child Rights, CEDAW, इसके अलावा there are regional instruments that Pakistan government has signed, सार्का है और इस्लामिक ममालिक के साथ कुछ ऐसे हैं। सो अभी तो सऊदी अरेबिया ने भी मेरे ख़्याल में 18 साल के बच्चों की शादी का कर लिया, और हम देखते उसी तरफ हैं, पैसे के लिए भी, उम्रे के लिए भी, हज के लिए भी, सारा। सो वी हैव टू, जब वो कुछ करते हैं तो हम कहते हैं बाप सही है, बेशक हम जितना सही हो लेकिन हम देखते हैं उनकी तरफ है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा, इसको आज बड़ा अच्छा डिबेट है। आई एम सॉरी हम थोड़ा सा लेट हुए, हमारी कुछ मीटिंग्स थी, अभी भी हैं। मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा कि हम वुमेन के हवाले से इंशाल्लाह इसको टेकअप कर लेंगे, एंड विद इन दैट कंटेक्स्ट में हम वुमेन का जो इशू आता है ये उसी में कवर हो जाएगा। इसका चाइल्ड राइट का एस्पेक्ट जो है, या चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से, और उसमें हम पार्लियामेंटेरियंस को अपनी तकरीरों में, तकारीर में कितना कन्विंस कर सकें। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट लाइक माइंडेड पीपल। मेरे दोस्त ज़िया ने कोशिश की कि ये मीटिंग जो है असम्बली में हो, लेकिन वो असम्बली में ओबीसी लिए नहीं सका कि कल कबार जो है लोग 2-4 जाके सेक्रेटरी के गले से पकड़ते कि तुमने एक कन्फ्यूजिंग इशू पे, मैं इसको कंट्रोवर्शियल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूजिंग इशू पे, या हमारे लिए जो है वो क्या कहते हैं कि अभी तक उस पर कोई अमहांगी नहीं हुई, ऐसे इशू पे आपने ला के इधर कॉन्फ्रेंस कर दी, मीटिंग कर दी, तो कल ज़िया के लिए भी मसला बन जाता, उनके लिए भी। तो अभी हम इनिशिएटिव लेंगे, अगर आप एग्री करें, थर्सडे को 2 बजे वुमेन जो है इशू पे, जिसने जितना काम किया, एंड आई डोंट वांट स्पीचेस, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, हम जिम्मेदारी ले लें कि हम जो हैं औरतों के मसाइल के हवाले से, अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से, मैटरनल मॉर्टलिटी के हवाले से, इन्फेंट मॉर्टलिटी, बच्चों के अमवात हैं वो भी आ जाता है क्योंकि माँ से मुतल्लिक हैं, औरतों की एजुकेशन के हवाले से। कल रात को मुझे 2-4 ख़वातीन का फ़ोन आया कि क्वेटा में वर्किंग वुमेंस के इश्यूज़ हैं, हॉस्टल्स का इशू है, सो जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, और इसके बाद वो क्या कहते हैं कि मैटरनिटी लीव जो होती है, बच्चों की पैदाइश के बाद जो छुट्टियाँ होती हैं, तनख्वाहें होती हैं, मरात होती हैं, इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक मैं ये समझता हूँ कि हमने खुलकर बात करनी होगी। और जो 8 या 9 या 10 के बाद जो हमारा रेजोल्यूशन आएगा, डेफिनेटली मुझे उसमें ख़वातीन सारे सपोर्ट करेंगे, मर्द भी सब करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई मर्द किसी औरत के हकूक़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन बात यह है कि समझाने की है।